So first of all discuss what do we actually mean by photogrammetry. Photogrammetry का मतलब क्या होता है, ठीक है. We are going to discuss this thing. So if I ask you that if you have to analyze some particular terrain without going to that particular terrain, ठीक है, आपको किसी terrain के बारे में एनालिसिस करने का बोला है, तो उस terrain पे आपको जाना नहीं, then how do you analyze that particular terrain? How you will know the general topography and general topography of that particular terrain, है ना. So if you use the science of photogrammetry, that means if you use picture, if you use photo as a medium to collect information about that particular terrain, so then that particular science is called photogrammetry. I can say that photogrammetry is the science of obtaining information about physical objects through the process of recording photograph, measuring and interpretation of that photograph. ठीक है, so that is all the things that I can say about that. Here you can see the exact definition. Photogrammetry is the science of obtaining information about physical objects, or I can say some terrain, है ना, through the process of recording photograph and also measuring and interpretation of that particular photograph. ठीक है, जाना नहीं है हमको साइट पर, फोटोग्राफ के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठी कर लेंगे उस पर्टिकुलर टेरेन या टोपोग्राफी के बारे में. ठीक है, अब देखिए what I am telling is that in this process what I am doing is I am recording photographs, है ना, I am recording photographs. Okay, in photogrammetry I am recording what? I am recording photographs. Okay, अब ये जो फोटोग्राफ है, you can record this photograph either from air or from near ground surface, है ना. I can say that आप जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आप हवा से भी खींच सकते हैं और वो फोटोग्राफ ग्राउंड के नजदीक से भी फोटो खींच सकते हैं. ठीक है, तो I can classify the science of photogrammetry into two types, that is aerial photogrammetry and other is what? Terrestrial photogrammetry. ठीक है, मैंने ये बोला है कि आप जो फोटो है वो हवा से भी खींच सकते हैं, आसमान से भी खींच सकते हैं. ठीक है, आसमान से कैसे खींचेंगे, हो सकता है आपका जो कैमरा इट इज माउंटेड ऑन द कैमरा इज माउंटेड ऑन एन एयरक्राफ्ट. ठीक है, और आप ग्राउंड के नजदीक से भी फोटो ले सकते हैं. That's why I am classifying the science of photogrammetry into two categories, aerial photogrammetry and terrestrial photogrammetry. Okay, तो आइए इसके बारे में और बात कर लेते हैं. Let us discuss some more things about this. So first of all, the photos taken by camera mounted on an aircraft. तो ये किस चीज में आएगा, ये आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री. इन एरियल फोटोग्रामेट्री photographs are taken by a particular camera, then this camera is mounted on an aircraft, है ना, हवाई मार्ग से आप फोटो ले रहे हैं. बट if the photograph of the area, 1 minute, okay, suppose, but if the photograph of the area taken by a camera and that camera is fixed on or near the ground, then we can classify photogrammetry as what? Terrestrial photogrammetry. Okay, but now again moving on, if my camera axis is nearly vertical, then if my camera axis is nearly vertical, है ना, तो जो फोटोग्रामेट्री होगी that photogrammetry is aerial photogrammetry. क्या होता है कि if your camera is mounted on an aircraft, है ना, ये एयरक्राफ्ट है मान लीजिए. आपका डायग्राम अच्छा नहीं बनाया मैंने, मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट है कुछ, है ना, और यहाँ पर आपने कुछ फोटो कैमरा फिट कर दिया इस प्रकार से और आप फोटोस ले रहे हैं. तो इन एरियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है कि जो आपका कैमरा की एक्सिस होती है दैट इज नियरली वर्टिकल, है ना.
but in terrestrial photogrammetry, your camera axis is nearly horizontal. So this is another difference between aerial photogrammetry and terrestrial photogrammetry. Okay. Now we generally, if you want to do some topographical survey or preliminary survey, then we go for aerial photogrammetry. But if we have to study some special features, है ना, कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना है, देन वी हैव टू गो नियर टू द ग्राउंड, है ना, नियर द ग्राउंड जाना पड़ेगा. देन वी विल डू व्हाट, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए हैं. एरियल फोटोग्रामेट्री आप कहाँ करेंगे, एग्रीकल्चर, हाईवे एक्सेट्रा, इन एरियाज में करेंगे, है ना. बट इफ यू वांट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्टिकल, क्लिफ, माउंटेन टेरेन एक्सेट्रा, then you can go for terrestrial photogrammetry. So these are some of the basic difference between aerial and terrestrial photogrammetry. Moving forward, now let us discuss what are the advantages of photogrammetry. अब देखिए एडवांटेज क्या है. Now you are just clicking photos without going to the site. और साइट पे जा भी रहे हैं तो आप, अगर आप एरियल फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं, if you are doing aerial photogrammetry, then you are just clicking the photos. So this method is quick method और slow method. ये बहुत ही फास्ट मेथड है, this is quick method, है ना. अब देयर में भी सम प्लेसेस जहाँ पर जाना मुश्किल है, inaccessible एरिया से, तो फोटोग्रामेट्री कैन बी डन इजीली इन विच एरिया, inaccessible एरिया, है ना. inaccessible एरिया जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे एरिया में आप फोटोग्रामेट्री कर सकते हैं. ठीक है. और अगर एडवर्स क्लाइमेट है तो वहाँ जाना भी मुश्किल है, एडवर्स क्लाइमेट है, तो आप फोटोग्रामेट्री को प्रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, एडवर्स क्लाइमेट, इन केस ऑफ एडवर्स क्लाइमेट. ओके. अब इफ यू आर डूइंग फोटोग्रामेट्री, so you are covering entire information with the help of what, photos, है ना. with the help of photos you are gathering information, so there will be no possibility of missing any data, ना. कोई भी डाटा मिस होने की संभावना नहीं रहेगी. ठीक है, एनी डाटा और एनी डिटेल, आई कैन से एनी डाटा और एनी डिटेल. ओके. नाउ देयर में बी सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. क्या डिसएडवांटेज है? अब आई कैन से दैट द इक्विपमेंट that are used for taking photos, camera etc., these may be costly. My camera will be costly, है ना. तो costly equipment, the equipment that I am using in photogrammetry may be very costly. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लिया आप एरियल फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं, अब ग्राउंड पे तो जा नहीं रहे, so here contour line cannot be located. This is one of the disadvantage of photogrammetry. Contour line cannot be located. Okay, so I can say that. और एक और डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं, तो स्मॉल एरिया, है ना. फोटोग्राफिक मैपिंग इज जनरली कॉस्टलियर देन ग्राउंड मेथड, है ना. अगर छोटा सा एरिया है वहाँ आप फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा. आई कैन से दैट फॉर स्मॉल एरिया ये थोड़ा कॉस्टली रहेगा, है ना, मोर कॉस्टली रहेगा एज कम्पेयर टू ग्राउंड मेथड, है ना. चलिए, so we have discussed some basic things related to photogrammetry. We have defined what is photogrammetry. We have also discussed aerial photogrammetry and terrestrial photogrammetry, and then we have also discussed advantages of photogrammetry and disadvantages of photogrammetry. Now let us discuss about the types of aerial photograph. जो हवा से, जो आप एयर से, जो या फिर एयरक्राफ्ट से जो आप फोटो लेते हैं, तब फोटोग्राफ की कैसा क्लासिफिकेशन होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, so let us discuss. So I am classifying this type of aerial photograph into two categories. ठीक है. So first one is your vertical photograph, and then we are classifying that aerial photograph into oblique photograph. तो देखिए होता क्या है. देखिए, जब आपका जो ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा है, if my optical axis of camera is truly vertical, then क्या होगा, then in that case
my optical axis of camera will coincide with my line of gravity, plumb line. जब if my optical axis of camera is vertical, then it will coincide with the line of gravity. So I can say if line of gravity and optical axis of camera is same, then my photograph will be truly vertical photograph, है ना. अब in this case क्या होगा? In this case your photo plane in this case your photo plane will be parallel to the datum. ये देखिए, ये datum वाला surface है and this is photo plane and these both are parallel to each other. So in vertical photograph, photo plane is parallel to datum plane, but it is extremely difficult to keep the axis perfectly vertical. ठीक है, परफेक्टली वर्टिकल रखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ ना कुछ टिल्टिंग हो सकती है. किसकी? एक्सिस की. एक्सिस कुछ ना कुछ टिल्ट हो सकता है. ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है. तो आई कैन से इफ कैमरा एक्सिस इज अनइंटेंशनली टिल्टेड या स्लाइटली टिल्टेड हो जाता है बिटवीन 1 डिग्री टू 3 मिनट, देन क्या होगा, है ना. द रिजल्टिंग फोटोग्राफ क्या होगा? देन दैट रिजल्टिंग फोटोग्राफ विल बी कॉल्ड व्हाट? टिल्टेड फोटोग्राफ. ठीक है, यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग, है ना. अब देखिए क्या होता है कि if my camera axis is tilted by more than 3 degree from the vertical, by more than 3 degree from the vertical, तो क्या होगा? Then my photograph will be classified as oblique photograph. When the camera axis is considerably inclined to the vertical, then the photographs are classified as called as oblique photograph. So this is another some of the basic things that I have discussed with you. ओके, मूविंग फॉरवर्ड कुछ और चीजें जान लेते हैं हम लोग. ओके, अब देखिए क्या होता है. लेट अस डिस्कस व्हाट वी मीन बाय फोकल प्लेन एंड व्हाट वी मीन बाय फिड्यूशियल मार्क. ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब आपका एरियल कैमरा रहता है उसमें एक प्लेन रहता है जहां पर जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही है ऑब्जेक्ट की वो फोकस पे आ जाती है. तो आई कैन से दैट फोकल प्लान is the plan in an aerial camera on which all the incident rays from the object are brought to the focus. ऑब्जेक्ट से जो भी इंसिडेंट रे आ रही है वो एक पर्टिकुलर प्लान में आके क्या होगी? फोकस होगी. वहां से आके इसको हम फोकस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेन. ठीक है, और ये कहाँ रहेगा? एरियल कैमरे में रहेगा. तो आई कैन से दैट फोकल प्लान is the plan in an aerial camera on which all the incident rays from the object are brought to the focus. ठीक है, सपोज ये जो मैंने स्क्वायर जैसा जो बनाया है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर फोकल प्लेन. ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है. अब मान लीजिए कि आप दो ऑब्जेक्ट है ऑन द ग्राउंड. सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी. तो ग्राउंड पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी? बहुत दूरी होगी. बट अगर मैं फोटो लेता हूँ तो फोटो में ये दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, है ना, ये दोनों बहुत पास में होंगे. तो आई कैन से एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इमेज डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है दे आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इमेज डिस्टेंस, है ना. The focal plane is kept exactly at a distance of focal length of the camera. ठीक है, this is the one of the point. ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, मूविंग ऑन. अब ये देखो फिड्यूशियल मार्क होता क्या है ना. दिस फिड्यूशियल मार्क दैट इज मार्क एट द सेंटर ऑफ नेगेटिव, है ना. देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. देखिए क्या होता है कि फिड्यूशियल मार्क्स रहता है. दिस मार्क्स आर प्रोवाइडेड ऑन फोकल प्लेन to provide reference line for measurement of image distance. ठीक है, ये जो फिड्यूशियल मार्क्स होता है ये क्या करता है? ये रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस. ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो ये ऐसे रेफरेंस लाइन एक्ट करता है. ठीक है, अब नाउ जनरली दिस फिड्यूशियल मार्क्स आर 4 to 8 इन नंबर. कितने नंबर होते हैं इसके? 4 to 8, है ना. आप गिनिए यहाँ पर, है ना, आप गिनिए यहाँ पर. हो सकता है कि दिस फिड्यूशियल मार्क कितने हो? 4 हो. 1 2 3 4 4 हो, है ना. और 5 6 7 8, है ना.
तो जनरली 4 to 8 होते हैं इनके नंबर फिड्यूशियल मार्क्स के। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि एक और पॉइंट में दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ये फिड्यूशियल मार्क है, इसको बोल देता हूँ मैं P। इस फिड्यूशियल मार्क को मैं P बोल देता हूँ, इस फिड्यूशियल मार्क को मैं Q बोल देता हूँ, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट फिड्यूशियल मार्क, P एक तरफ है, Q दूसरी तरफ है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इफ ये दोनों अपोजिट फिड्यूशियल मार्क को मैं एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, तो लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट फिड्यूशियल मार्क, उसको मैं क्या बोल दूंगा, आई कैन से दैट लाइन एज फिड्यूशियल लाइन। ओके, सपोज पी क्यू हो गया। अब ये फिड्यूशियल मार्क को कह देते आर, इस फिड्यूशियल मार्क को मैं बोल देता हूँ एस। ठीक है, तो ये भी एक फिड्यूशियल लाइन हो गई, लाइन ज्वाइनिंग फिड्यूशियल मार्क आर एंड लाइन ज्वाइनिंग फिड्यूशियल मार्क एस, है ना। आर और एस जो फिड्यूशियल मार्क है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, so let us join these two fiducial mark with the help of line, then that line is called fiducial line. Okay, so line joining opposite fiducial marks are called fiducial line, and you can see that this fiducial line intersect at a point that is called center of collimation. ये देखिए, ये जो फिड्यूशियल लाइन है ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है। ये देखिए बीच में सेंटर पे एक डॉट है। ठीक है, let me show you with another color, red color. Okay. You can see that this, है ना, ये जो रेड मार्क मैंने बनाया है यहाँ पर दो फिड्यूशियल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। लाइन जॉइनिंग अपोजिट फिड्यूशियल मार्क इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कॉल्यूमेशन। ओके, आपको ये याद रखना। अब देखिए, अब ये जो फिड्यूशियल लाइन रहती है, इस फिड्यूशियल लाइन प्रोवाइड ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेजेस ऑन द फोटोग्राफ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस फिड्यूशियल लाइन प्रोवाइड ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें देगा, है ना, that will be helpful for measurement of position of images on the photograph. ठीक है, this is another one thing that you should remember. ओके, चलिए अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ एरियल फोटोग्राफ की, एरियल कैमरे की बात करता हूँ, तो इन कोई भी एक एरियल कैमरा है। ठीक है, तो एरियल कैमरे में क्या होता है, योर सेंटर ऑफ कॉल्यूमेशन जो होता है इट इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल पॉइंट। अब सेंटर ऑफ कॉल्यूमेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट वी हैव नॉट डिस्कस व्हाट इज प्रिंसिपल पॉइंट, so we are going to discuss that particular principal point. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ क्या लिखा है, फिड्यूशियल मार्क्स मैंने बता दिया, दिस आर प्रोवाइडेड ऑन फोकल प्लान टू प्रोवाइड रेफरेंस लाइन फॉर व्हाट, फॉर मेजरमेंट ऑफ इमेज डिस्टेंसेस 4 to 8 in number. Line joining opposite fiducial mark intersect at a point called center of collimation. Discuss this thing. फिड्यूशियल लाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करेगा फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेजेस ऑन द फोटोग्राफ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे। प्रिंसिपल पॉइंट मुझे बताना है, मुझे याद है। ठीक है बेटा, तो मुझे याद है, मुझे प्रिंसिपल पॉइंट बताना है आपको। तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर स्टेशन की। जो आपका एरियल कैमरा रहेगा वो कहाँ रहेगा, एरियल कैमरा एयरक्राफ्ट पर माउंटेड होगा। ठीक है, अब जो एयरक्राफ्ट है वो क्या है, लगातार घूम रहा है, तो जो एरियल कैमरा है उसकी जगह तो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो किस पर माउंटेड है, योर एरियल कैमरा इज माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, एयरक्राफ्ट तो स्थिर तो नहीं है ना आकाश में। तो आई कैन से कि क्या होगा, एक्सपोजर स्टेशन क्या होगा। आई एम डिफाइनिंग योर एक्सपोजर स्टेशन। ये प्रिंसिपल पॉइंट बाद में बताता हूँ, पहले एक्सपोजर स्टेशन बताता हूँ मैं आपको। आई कैन से दैट एक्सपोजर स्टेशन इज ए पॉइंट इन द स्पेस that is occupied by camera lens at the time of exposure. At the time of exposure मतलब जिस समय हम फोटो क्लिक कर रहे हैं। At the time of exposure means at the time of clicking off और taking photograph. ठीक है, at the time of recording photograph. ठीक है, हम जब एयरक्राफ्ट पे रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी फोटो खींचेंगे। एक्सपोजर स्टेशन जो रहेगा वो उसकी पोजीशन भी बदलेगी, है ना। पॉइंट इन द स्पेस occupied by camera lens at the time of exposure.
So that's why I am telling at the time of exposure. Time of exposure may be different. ठीक है, अब देखिए. Now let us discuss what is flying height. So elevation of exposure station above datum. It is called flying height. Or I can say that vertical distance. Vertical distance between what? Vertical distance between datum. Vertical distance between datum and exposure station. Vertical distance between datum and exposure station, है ना. तो इनके बीच में जो दूरी होगी या एलिवेशन होगी उसी को मैं फ्लाइंग हाइट बोलता हूँ. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इफ आई कैन से दैट इन वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट अबव द अर्थ सरफेस, then that particular term is called altitude. Now I can say that the vertical distance between aircraft and earth surface, that particular distance is called altitude. ठीक है, ये एक और टर्म था. अब देखिए, अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल पॉइंट पे. ठीक है, अब प्रिंसिपल पॉइंट से पहले एक और चीज है. हाँ, टिल्ट. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस टिल्ट बिफोर प्रिंसिपल पॉइंट. अब देखिए क्या होता है कि अगर आपका ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा और लाइन ऑफ if your optical axis of camera, if your optical axis of camera, है ना, if your optical axis of camera and plumb line, ये दोनों क्या कोइंसाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई कुछ भी एंगल नहीं होगा. और जो फोटोग्राफ होगी वो फोटोग्राफ कौन सी फोटोग्राफ होगी, दैट फोटोग्राफ विल बी व्हाट, वर्टिकल फोटोग्राफ. ठीक है, तो बट अगर आपका फोटोग्राफ कैसा ओब्लिक फोटोग्राफ है या टिल्टेड फोटोग्राफ है, तो क्या होगा, जो ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा रहेगी और प्लम लाइन रहेगी, ये दोनों एक जगह पे कोइंसाइड नहीं होगी. देयर में बी सम एंगल बिटवीन दिस ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा एंड प्लम लाइन. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर एंगल, then that particular angle is what, vertical angle. So I can say vertical angle between optical axis of camera and plumb line at the time of exposure is called angle of tilt. ठीक है, तो इसको वापस से हम फोटो से देख लेते हैं. देखिए, here in case of vertical photograph angle of tilt, angle t equal to 0. but अगर आपका जो फोटोग्राफ है वो टिल्ट है ना, इफ योर ऑप्टिकल एक्सिस इज टिल्टेड या कैमरा एक्सिस इज टिल्टेड, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ टिल्ट आता है. दैट इज ऑल आई वांट टू से. ठीक है, अब इसमें हाँ देखिए, यू कैन सी हियर दिस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन इज योर लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड दिस ब्लू लाइन इज योर कैमरा एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा. ये दोनों एक मिल नहीं रहे. दिस दोनों लाइन जो है, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड कैमरा एक्सिस, ये दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे. तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इस समय कहाँ पे बनेगा, एट एक्सपोजर स्टेशन, एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, है ना. तो दैट पर्टिकुलर वर्टिकल एंगल इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ टिल्ट. क्या सिंपल आप टिल्ट बोल दीजिए. ठीक है, यू कैन से टिल्ट. Tilt is the vertical angle between optical axis of camera and plumb line at the time of exposure. ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है. अब देखिए, ये है आपका क्या, दिस इज योर दिस पर्टिकुलर लाइन, जहाँ पे मैं डॉट, ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज योर कैमरा एक्सिस. और ये जो कैमरा एक्सिस है ये क्या कर रही है, ये कैमरा एक्सिस क्या कर रही है, या ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा क्या कर रही है, किसी पॉइंट पे फोटोग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका फोटो प्लेन होता. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज योर 1 मिनट, देखिए, you can see that your optical axis of camera, है ना, it is intersecting photograph at some particular point.
तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर आ जाता है एक नादिर पॉइंट। अभी मैंने आपको प्रिंसिपल पॉइंट पी बताया, अब मैं आपको नादिर पॉइंट एन बता देता हूँ। अब आप देखिए लाइन ऑफ ग्रेविटी को। अब ये जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है, इट इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग योर फोटोग्राफ ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी भी फोटोग्राफ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये भी क्या है, आपके फोटोग्राफ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो पॉइंट वेयर लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड नादिर पॉइंट। ठीक है। तो अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ भी आप देख लीजिए। पॉइंट वेयर ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट, है ना। पॉइंट वेयर लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ, नादिर पॉइंट। ठीक है, दोनों चीज हो गई। लेकिन देखिए एक और पॉइंट है, आई। अब दिस इज आई इज आइसोसेंटर, द पॉइंट ऑन एरियल फोटोग्राफ वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट मीट द फोटोग्राफ। एंगल ऑफ टिल्ट कितना था, टी। तो अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल ऑफ टिल्ट का आधा बोल दीजिए आप, t/2, है ना। एक t/2 का एंगल बनाइए और लाइन को सीधा खींच के फोटोग्राफ पे ले आइए। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए इधर, यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर था, इसने टी एंगल को दो भागों में तोड़ा, t/2 और t/2 में। ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर फोटोग्राफ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये डॉटेड लाइन फोटोग्राफ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं पॉइंट आई बोल रहा हूँ। तो आई कैन से आइसोसेंटर इज द पॉइंट ऑन एरियल फोटोग्राफ where angle bisector of angle of tilt meet the photograph. It is the point on aerial photograph where angle bisector of angle of tilt meet the photograph. ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पर P और I जो है, P is your principal point, बेटा P is your principal point, and what is I? I is your isocenter. ओके। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, प्रिंसिपल पॉइंट एंड आइसोसेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड आइसोसेंटर, आई एम कॉलिंग इट एज PI। नाउ फ्रॉम हियर, फ्रॉम द फिगर, PI इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है O से लेके ये फोटोग्राफ तक, ये फोकल लेंथ के बराबर है। तो PI इक्वल टू F tan t/2। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, PI इक्वल टू F tan t/2। ठीक है। सिंपल सा ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से चीजों हमने कर दी है। ठीक है। अब देखिए और कुछ पॉइंट बचा है क्या। लेट अस आल्सो डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इफ सम पॉइंट इज मिसिंग। या एंगल ऑफ सिंक। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ सिंक? इट इज द क्लॉकवाइज एंगल दैट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टू द नादिर पॉइंट। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस से नादिर पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ सिंक। देख लेते हैं। देखिए दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये देखिए प्लस वाई लिखा है मैंने यहाँ पर, ये प्लस वाई दिखा है। एक मिनट वापस से, लेट अस चेंज द कलर ऑफ द पेन। सी हियर आई हैव रिटन प्लस वाई, एंड द प्लस वाई से जो एंगल बन रहा है अप टू व्हाट, नादिर पॉइंट, इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ सिंक। ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने कवर कर ली है और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है। अब देखिए स्केल क्या होता है, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल इज इक्वल टू फोटो वाली डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड वाली डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पर आई विल टेल यू अबाउट टू केसेस, है ना। इन वन केस योर टेरेन इज फ्लैट। तो इफ योर टेरेन इज फ्लैट, तो टेरेन पे जो भी पॉइंट होगा, that point are at equal distance from datum।
है ना। इस टेरेन पे जो भी पॉइंट होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डेटम। यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट ए है, फिर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डेटम। पॉइंट बी मान लीजिए एच भी दूरी पर है, डेटम से ऊपर है, और पॉइंट ए एच ए दूरी ऊपर है डेटम से, है ना। और प्लेट टेरान है तो एच ए इक्वल टू एच बी हो जाएगा। सपोज वो होता है एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर इफ आई वांट टू से व्हाट इज द स्केल, तो देख लेते हैं स्केल क्या है ना। स्केल क्या है ये देख लेते हैं हम। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं हम। अब हम यहाँ पर कलर बदल लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, फिर चीज़ों को आपको और अच्छे से बता देंगे। चलिए अब देखिए बेटा, यू कैन सी दैट स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनका जो ग्राउंड डिस्टेंस था कैपिटल ए बी बोल दिया, और फोटो डिस्टेंस स्मॉल ए बी बोल दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दो छोटे से ट्रायंगल को करते हैं। फर्स्ट लेट अस टेक ट्रायंगल ओ ए बी, और एक बार लीजिए आप ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। और एक बार आप ट्रायंगल ले लीजिए वापस से ओ ए सी, इसमें ये जो ए स्मॉल है ये स्मॉल सी है, ठीक है। ट्रायंगल ओ स्मॉल ए एंड स्मॉल सी, एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल ए एंड कैपिटल सी, ठीक है। यानी ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए आप, पूरा वाला, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल है, दिस बोथ ट्रायंगल ओ स्मॉल ए सी एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल ए कैपिटल सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है बेटा। यहाँ पर जो डिस्टेंस ए बी अपॉन में कैपिटल ए बी, इट इज इक्वल टू ओ स्मॉल सी अपॉन में ओ कैपिटल सी, एंड इट इज इक्वल टू एफ अपॉन में ये दूरी कितनी है, ये अगर जो आपका पॉइंट है, पॉइंट इफ योर पॉइंट इज एच डिस्टेंस अबोव डेटम, है ना। तो ये जो डिस्टेंस कैपिटल ओ से कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये आपका, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल ओ सी, दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी कैपिटल एच माइनस एच आपका फ्लाइंग हाइट हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल ओ सी इक्वल टू बड़ा एच माइनस स्मॉल एच, है ना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हो जाएगी। तो यहाँ से आप स्केल को क्या लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्लेट टेरेन, स्केल इक्वल टू ग्राउंड फोटो डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ एफ अपॉन में कैपिटल एच माइनस एच। ओके, यू कैन से दिस। अब मैं ये जो है मेरा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा एच डैश, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, योर एच डैश इज फ्लाइंग हाइट अबोव ग्राउंड, है ना। ग्राउंड से ऊपर कितना फ्लाइंग हाइट है, क्योंकि योर पॉइंट ए एंड बी कहाँ पर है, ग्राउंड पर ही है ना। पॉइंट ए एंड बी कहाँ पे, ग्राउंड पर है। तो और ओ और पॉइंट ए के बीच में कितनी दूरी है, ओ और पॉइंट ए के बीच में कितनी दूरी है, एच डैश है, ठीक है। तो आई कैन से इट इज फ्लाइंग हाइट अबोव ग्राउंड, और एफ इज फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। अब मान लो कि इफ योर टेरेन इज नॉट फ्लैट, तो क्या होगा कि जो आपका पॉइंट, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है। सपोज बेटा योर ग्राउंड इज नॉट फ्लैट, है ना, अंडुलेटिंग ग्राउंड है। तो जो ग्राउंड पे जो पॉइंट होंगे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, है ना,
ये डेटम से कुछ अलग अलग दूरी पे होंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। सपोज स्मॉल एच है एंड स्मॉल एच भी, ठीक है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इज स्केल? स्केल क्या होगा? स्केल क्या होगा इन दैट पर्टिकुलर केस? इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, मान लो कि कभी ऐसा केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, एच एवरेज निकाल लेंगे और स्केल को हम इस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं, एच इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एवरेज, ठीक है। इस प्रकार से हम स्केल को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ आई वांट टू से दैट इन केस ऑफ वेरिएबल एलिवेशन टेरेन, scale of point at higher elevation will be larger than those at lower elevation। मान लीजिए कि यहाँ पर एच बी जो था, है ना, सॉरी, बी ऊपर था एज कम्पेयर टू ए, यानी एच बी इज ग्रेटर देन एच है ना। तो इफ योर एलिवेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एलिवेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर जो स्केल होगा, है ना, तो स्केल होगा पॉइंट बी का, डेट विल बी ग्रेटर देन स्केल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस घटेगी तो ये जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ छोटा आएगा तो स्केल अपने आप बड़ा हो जाएगा फॉर द केस ऑफ बी। तो एक और पॉइंट निकल रहा था, अगर थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन बनता है तो इस पॉइंट को भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और कुछ पॉइंट यहाँ रह रहा है, ठीक है। आई कैन से डेट माई फोटोग्राफ, जनरली आई कैन से डेट, यहाँ पर अगर मेरा फ्लाइंग हाइट जो होता है, ये जो फॉर्मूला है एज इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। जनरली मेरा फ्लाइंग हाइट क्या है, कांस्टेंट रहता है एंड माई स्मॉल एच ओनली वेरी, ठीक है। तो माई स्मॉल एच वेरी, तो स्मॉल एच के हिसाब से आपका जो स्केल है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। स्मॉल एच के हिसाब से आपका क्या वेरी कर जाएगा, आपका वेरी कर जाएगा स्केल। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट है इसमें। कैपिटल एच को तो आपको जनरली कांस्टेंट मानना है एंड स्केल ऑफ योर फोटोग्राफ वेरीज विथ एलिवेशन ऑफ टेरेन अबव द डेटम, ठीक है। एलिवेशन ऑफ टेरेन या एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी अबव डेटम, ठीक है। ये बता ही दिया है मैंने आपको। चलिए अब मान लीजिए कि इफ आई कैन से दैट यहाँ पर जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए बी, ये सारे पॉइंट अगर डेटम पे ही आ जाए, मान लीजिए कि एच ए टेंड्स टू जीरो, एच बी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। सारे पॉइंट जो है ए बी, है ना, ये सारे पॉइंट डेटम पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल एच का वैल्यू 0 आ जाएगा। देन इन पर्टिकुलर केस योर स्केल इज एफ अपॉन में एच, एफ अपॉन कैपिटल एच। So now this particular scale is then called datum scale, ठीक है। ये भी मैंने आपके नोट्स में लिखा दिया है, डेटम स्केल क्या होता है। जो भी आपके पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट डेटम पे आ जाए, then your scale will be datum scale and datum scale is equal to f upon में capital H minus h। अब small h is 0, then datum scale become small f upon में capital H, ठीक है। and your datum scale will be effective over entire photograph if all the ground points were projected on the data, ठीक है। एक और पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए अब देखिए, we have discussed a lot of things, now let us discuss if अगर आपको अब आपको ग्राउंड कोऑर्डिनेट दिया है या फोटो कोऑर्डिनेट दिया है, इसमें तो कोई पर्टिकुलर चीज दी है और दूसरी चीज आपको डिटरमाइन करनी है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज आपको क्या दिया है, आपको दिया है फोटो कोऑर्डिनेट, यहाँ पर स्मॉल एक्स ए एंड स्मॉल वाई बी, है ना। मान लीजिए स्मॉल एक्स एंड स्मॉल बी आपके फोटो कोऑर्डिनेट है और कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आपका ग्राउंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इफ आई आस्क यू
व्हाट इज द ग्राउंड कोऑर्डिनेट? तो ग्राउंड कोऑर्डिनेट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच। ठीक है, कुछ इस तरीके के रिलेशन के थ्रू आप चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं और यहाँ से आप बता सकते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में एफ। तो इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं और ग्राउंड कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं इफ योर फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन, है ना। 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो हमारी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब देखिए, इन हियर इट इज गिवन ए लाइन ए बी, है ना। A line AB measure 11 centimeter on a photograph taken with a camera having focal length 21.5 centimeter। तो लाइन AB है ना, तो स्मॉल AB, लाइन AB तो ग्राउंड की दूरी थी, कैपिटल AB इज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन फोटो? स्मॉल AB, and small AB is equal to 11 centimeter given, है ना, and here also given focal length of camera as 21.5 centimeter। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द सेम लाइन मेजर 3 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। तो स्मॉल ए बी की दूरी वापस से 3 सेंटीमीटर दी है। अच्छा ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर जो दूरी है, 11 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है पॉइंट ए बी के बीच में, इट इज गिवन ऑन फोटोग्राफ पे ये 11 सेंटीमीटर, लेकिन मैप पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस आस्क मी समथिंग, मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, फोटोग्राफ हो या मैप हो, ओरिजिनल जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में है ना, वो तो सेम ही होगी, है ना। मान लीजिए वो एक्स है, तो फोटोग्राफ हो या मैप हो, ओरिजिनल डिस्टेंस ए बी तो सेम ही होगी, है ना। तो अगर तो यहाँ पर ए बी को मैं बोल देता हूँ एक्स, तो ए बी जो ग्राउंड डिस्टेंस है कैपिटल ए बी, फोटोग्राफ हो या मैप हो, ग्राउंड पॉइंट तो वहीं रहेंगे। ठीक है, मैप पर ग्राउंड पॉइंट कुछ अलग दूरी पे दिखेंगे, मैप पर ग्राउंड पॉइंट कुछ अलग दूरी पे दिखेंगे, लेकिन ओरिजिनली जो कैपिटल ए बी उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसको हम अब इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। अब देखिए क्या गिवन है, अच्छा स्केल इज गिवन, स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1/45,000। स्केल ऑफ मैप, है ना, स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1/45,000। ठीक है, तो अब यहाँ से स्केल इक्वल टू ग्राउंड फोटो डिस्टेंस या मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस इज कैपिटल ए बी। यहाँ से आप एक इक्वेशन फॉर्म करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल ए बी को हम 3 सेंटीमीटर लिख देते बेटा। ठीक है, अब यहाँ से वापस से आप स्केल ऑफ फोटोग्राफ आप लिख सकते हैं स्मॉल ए बी अपॉन में ए बी, लेकिन स्मॉल ए बी का वैल्यू कितना फोटोग्राफ पे 11 सेंटीमीटर है, तो वी आर राइटिंग इट एट 11 अपॉन में कैपिटल ए बी, है ना, एंड इट इज इक्वल टू एफ अपॉन में कैपिटल एच माइनस एच। अब कैपिटल एच का वैल्यू ही निकालना है। कैपिटल एच इज द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, है ना, इफ एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द एरिया इज 350 मीटर। जो एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द एरिया है, यानी कि एच एवरेज है, इट इज गिवन एज 350 मीटर। तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा बेटा, 11 अपॉन में ए बी इक्वल टू एफ अपॉन में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब व्हाट इज योर कैपिटल एच, ये तो निकालना है आपको, स्मॉल एच इज 350। ओके, अब देखिए ये सेंटीमीटर में था,
ये सेंटीमीटर में था तो इसको काट दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से ए बी आप पहले निकाल लीजिए सेंटीमीटर में। तो ए बी विल कम आउट टू बी 3 इंटू 45000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप ए बी निकालेंगे, इसको आप मीटर में रिपोर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1350 मीटर। ओके, अब यहाँ आप इस पर्टिकुलर ए बी की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, मैप के द्वारा जो ए बी की डिस्टेंस निकाली उसको आप पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, कंसेप्ट यही है कि ग्राउंड डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, फोटो डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस वेरी करेगी, ग्राउंड डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम रहेगी। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बेटा, यहाँ पर ए बी को पुट करिए। 11/1350 इक्वल टू 21.5 अपॉन में कैपिटल H माइनस 350। So from here you will get the flying height capital H, and the flying height capital H will come out to be 2988.636 मीटर। इस प्रकार से आपके पास फ्लाइंग हाइट की वैल्यू आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए लाइन 2350 मीटर लॉन्ग है ना, 2350 मीटर लॉन्ग है ना। लाइन एट ए, अच्छा लाइन आपको दी है, सपोज लाइन ए बी है ना, एंड लाइन ए बी का वैल्यू कितना है 2350 मीटर है ना। लाइन एट ए एलिवेशन ऑफ 50 मीटर, मेजर 10.5 सेंटीमीटर। इफ अगर स्मॉल एज 50 मीटर है ना, 50 मीटर एलिवेशन है, देन स्मॉल ए बी का कितना है बेटा आपका 10.5 सेंटीमीटर है, ये बोला उसने। ठीक है, and it is also given focal length of the camera is 20 centimeter. Determine the scale of the photograph for an area having elevation of 1200 मीटर। अब देखिए आपका जो स्केल होता है, स्केल इज इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो जो आपका स्केल है, स्केल 500, स्केल एट एलिवेशन ऑफ 500 एंड स्केल एट एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यानी मैं पहले निकालूंगा स्केल एट एलिवेशन ऑफ 500 मीटर। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, स्केल एट एलिवेशन ऑफ 500 मीटर इक्वल टू आपका फोटो डिस्टेंस दैट इज 10.5 डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस और इक्वल टू 2350 है ना। अब यहाँ पर फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ दिया है, लेकिन अब यहाँ से मैं स्केल एट 500 मीटर पहले निकाल सकता हूँ। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, स्केल एट एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। इसको अगर मैं लिखता तो बेटा क्या आता है ये, अच्छा हमारे को इस क्वेश्चन में फोटो डिस्टेंस नहीं दिया है, व्हेन माय एलिवेशन वाज 1200 मीटर। तो मुझे ये चीज इस प्रकार से निकालनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले के थ्रू ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ही निकालनी पड़ेगी। अब कैमरा तो सेम ही है, तो मेरा फोकल लेंथ ऑफ कैमरा यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर ही होगा बेटा। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से मैं स्केल एट एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे कैपिटल एच फ्लाइंग हाइट नहीं दिया है। तो फ्लाइंग हाइट मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एट 500 मीटर, स्केल एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर, इसके थ्रू मैं फ्लाइंग हाइट निकाल लेता हूँ। अब चलिए निकाल लेते हैं। स्केल एट एलिवेशन ऑफ 500 मीटर इक्वल टू एफ, दैट इज 20 इंटू 10⁻² है ना, अपॉन में कैपिटल एच
माइनस स्मॉल एच यहाँ पर है 500। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको कैपिटल एच फ्लाइंग हाइट आ जाएगी। फ्लाइंग हाइट आ जाएगी आपकी 4976.19 मीटर। अब इस फ्लाइंग हाइट को हम यहाँ पुट कर देना तो आपको स्केल मिल जाएगा एट एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर। स्केल आ जाएगा आपका 1/1881, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया है ना। आप यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, हैविंग एलिवेशन ऑफ 50 मीटर एंड 250 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए पॉइंट बी दिया है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड पॉइंट ए इज एन एलिवेशन ऑफ 50 मीटर and point B is at an elevation of point A is at an elevation of 650 meter and point B is at an elevation of 250 meter. It is given in the question, है ना, respectively above the datum, है ना, appear on a vertical photograph obtained with a camera of focal length 250 mm। यानी आपको फोकल लेंथ f कितना दिया है, 0.25 मीटर, है ना, mm है तो मैंने 0.25 मीटर बोल दिया फोकल लेंथ, एंड फ्लाइंग हाइट ऑफ 2700 मीटर। इट इज ऑल्सो गिवन h इज इक्वल टू 2700 मीटर, यानी 2700 मीटर दिया आपका फ्लाइंग हाइट अबोव द डेटा। तो डिटरमाइन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन these 2 points if photo coordinates are as given below। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मुझे ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है, if I want to know the ground distance then I should know the ground coordinate। अगर मुझे ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ग्राउंड कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ग्राउंड कोऑर्डिनेट पता रहता तो मैं ग्राउंड डिस्टेंस एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेता। तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, इट इज XA माइनस XB इसका स्क्वायर प्लस YA माइनस YB इसका स्क्वायर, फिर इस पूरे टर्म का अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं ग्राउंड डिस्टेंस बेटा मेरा निकाल लेता। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कैपिटल एक्स ए, कैपिटल XB, कैपिटल YA, कैपिटल YB निकालना पड़ेगा। तो हमने कुछ ग्राउंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालना वो भी देखा था। इस प्रकार से हम ग्राउंड कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके थ्रू, है ना, ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिटरमाइन द डिफरेंट थिंग इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो पहले हम ए पॉइंट पे जाते हैं और कैपिटल एक्स ए एंड कैपिटल वाई ए निकाल लेते बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स ए इक्वल टू स्मॉल एक्स ए इंटू एच माइनस एच ए अपॉन एफ, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एक्स ए कितना है 3.65 and what is capital A 2700 minus HA is what 650 ना अपॉन में F is equal to 0.25 मीटर। तो यहाँ से आप कैपिटल एक्स से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 299.30 मीटर 299.30 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल वाई ए निकाल लेंगे आप, स्मॉल वाई ए इंटू एच माइनस स्मॉल एच ए अपॉन एफ कर देगा। तो ये आपका स्मॉल वाई ए कितना आ जाएगा, स्मॉल वाई ए 2.54 आ जाएगा। 2.54 इंटू 2700 माइनस 650 अपॉन 0.25 मीटर में ही डाल देना आप उसको।
एक मिनट। हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर बेटा 10⁻⁻2 करना है, और यहाँ पर भी ऊपर 10⁻⁻2 करना है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं भूल गया था इसको। मेरे पास तो सॉल्व करा हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट करने लग गया था मैं। यहाँ से आप कैपिटल वाई निकाल लेना, एंड इट विल कम आउट टू बी प्लस 208.280 मीटर। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या है कि प्लस या माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस साइन आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुछ दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो भी साइन है फोटो कोऑर्डिनेट के, प्लस के साथ या माइनस सिंबल के साथ, तो हमें सिंबल का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बी पॉइंट पे आ जाइए, और बी पॉइंट के हिसाब से कैपिटल एक्स बी एंड कैपिटल वाई भी हम लोग निकाल लेंगे। तो कैपिटल एक्स बी आप निकालिए, माइनस में 2.25 इंटू 2700 माइनस 250, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू फॉर बी कितना था, 250 मीटर था। फिर अपॉन में आप क्या करिए, अपॉन में आप 0.25 मीटर कर दीजिए, यानी एफ की वैल्यू रख दीजिए। फिर यहाँ पर सेंटीमीटर में था, तो 10⁻⁻2 को ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ से कैपिटल एक्स पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी अराउंड -220.50 मीटर। सिमिलरली आप कैपिटल वाई बी भी निकाल लेंगे, प्लस 5.59 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2700 माइनस 250 अपॉन में 0.25। In this way you will get the value of capital YB, and capital YB equal to plus 547.820 meter. So you have find out the different coordinate, different ground coordinate. अब यहाँ पर इस ground distance वाला जो formula है, if you put the value of ground coordinate, then you will determine the actual ground distance. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका ग्राउंड डिस्टेंस आ जाएगा आपका 620.87 मीटर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन एंड गेट द रिजल्ट। तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। So in the next class we will discuss about the relief displacement, and we are also going to discuss about the photographic overlay. Okay, so we will meet in the next class. तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।